Welcome you to this special occasion. We are gathered here today for Rozgar Mela to witness the powerful initiative by central government to generate employment and build a Viksit Bharat, and celebrating it to appreciate the hard work, dedication and achievements of all those candidates who have successfully passed central government exams and now joining different departments like Indian Customs, GST, Income Tax, Indian Railways, State Bank of India and Department of Post, CISF, Employment Provident Funds Regional Office in Goa and ESIC's Regional Office in Goa, both under Ministry of Labour. It's our pleasure and privilege to have with us Sri Shripad Yesu Naik ji, Cabinet Minister for Waterways, and as a chief guest whose presence adds a special significance to this event. We also have with us Sri Bipin Upadhyay ji, he is GST and Central Excise Commissioner Goa, and after some time Sri Rohit Mansarat, Mayor of Panji, is also joining us to witness this function. As you know and have read or heard that such type of Rozgar Melas are being organized by central government on large scale throughout the country from time to time on specific date fixed, and today is the 15th of such times. In view of Honorable Prime Minister's commitment to all youths of India, more than 51,000 job appointment orders are being issued today in 47 different locations of our country by celebrating Rozgar Melas, making a massive step towards youth empowerment and national growth. And here in today's function, we will be distributing appointment orders to 47 such successful candidates who are present in this hall. Thus, today's more than 51,000 young Karma youths are being empowered to play a vital role in nation building with training and growth opportunities through the government's transparent recruitment process. Today, after coming here, I interacted with some of the candidates and I could see the smiles on the faces of the relatives and the friends accompanying the candidates, the radiant countenance of the success, as well as the general vibe of striving for excellence. These all are testimony to years of sincere efforts to strive above all to capture the suitable dream job, and now the future of India is in these young hands. I want to tell these new joiners that as you receive your appointment orders today, remember that this is just the beginning. Continue to pursue your passion, work hard and never stop learning. The values of discipline, perseverance and dedication that you are furthering here will guide you in all your future endeavors. I hope that their dedication and perseverance will lead them to excel in their job. I wish these candidates all the best for their future career and progress in their life. Thank you. Thank you, sir, for the welcome address. I request Honorable Minister Shri Shripad Naik sir, our guest today, whose current portfolio is Minister of State for New and Renewable Energy and Power, to please address the audience. नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे कस्टम के गोवा के कमिश्नर से सुनील देशमुख जी, श्री बिपिन कुमार उपाध्याय जी, गोवा के जीएसटी कमिश्नर, सामने बैठे हुए अलग अलग आस्थापनों से आए हुए सभी मान्यवर और इस रोजगार मेले में जो सिलेक्ट हुए हैं वो सभी मान्यवर, उपस्थित सभी भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यह मेरे लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं आज यहाँ 15वें चरण के रोजगार मेले में उपस्थित हूँ
जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की एक प्रमुख जो पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे युवकों को सशक्त बनाना, जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, उन्हें रोजगार और निर्भरता इन सबको लेकर उन्हीं युवकों को मजबूत करना, इनके लिए यह रोजगार मेला आज आयोजित किया हुआ है। यह रोजगार मेला केवल नियुक्ति पत्रों के वितरण का कार्यक्रम नहीं है, यह उन सपनों के पंख लगाने की शुरुआत है। यह उन परिवारों की आशाओं का प्रतीक है जो एक बेहतर भविष्य की ओर देख रहे हैं। यह हमारे युवकों की आत्मविश्वास से भरी हुई गौरवपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण आगे बढ़ने की यात्रा आज शुरुआत हो गई है। आज जब देश भर से 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, हम केवल रोजगार ही नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की भावना का आज हम उत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की दृष्टि स्पष्ट है, भारत को न केवल वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उसके युवा नागरिक सुसज्जित, सशक्त और सक्षम हो, ताकि वे इन यात्रा में सार्थक देश के विकास में योगदान दे पाए। मैं गोवा में आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 47 अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, यह एक आनंद का क्षण है, पर साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी जो आपको दी है, उसका जो कुछ इस अवसर में आपका कर्तव्य निभाने का भी काम आपको आगे करना होगा। आपको केवल एक नौकरी नहीं मिली है बल्कि राष्ट्र सेवा का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, चाहे आप केंद्रीय वस्तु या सेवा कर, वित्तीय सेवा विभाग हो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, गोवा कस्टम या किसी अन्य विभाग से कार्य करे। सदैव हम सबको याद रखना है कि आम नागरिक आपसे उम्मीद और विश्वास की नजर से देखते हैं। समर्पण, ईमानदारी और विनम्रता के साथ उनकी सेवा करने का मौका आप सबको मिला हुआ है। बहुत से युवा है, अपने गोवा में भी है, पूरे हिंदुस्तान में भी है, उसमें से आपको ही क्यों चुना गया, इसका एक आप थोड़ी इसमें चिंतन करना है कि ये जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री ने आपके ओर सौंपी है। इसके पहले भी बहुत से रोजगार का वितरण इस तरह के मेले में सबको ये पत्र वितरित किया था, नौकरियां दी थी। हम सब भारत के देशवासी है और आज जो लोकतंत्र हमें मिला है, वो लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्र सेनाओं ने बहुत कष्ट से अपना पसीना बहा के, जान की परवाह न करते हुए बलिदान देके भी हम सबको इस देश का लोकतंत्र हमें मिला है। और ये जो मिला उसको संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसको लोकतंत्र क्यों बोलते कि लोगों की सत्ता है, हम सबकी नहीं, हम किसी की नहीं, कभी वो मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो और कोई हो, लेकिन ये सत्ता लोगों ने हमें दी है। इसका विचार जो है सदैव हमारे दिमाग में रहना चाहिए, हम उनके लिए है और आज जो नौकरियां आपको प्रदान कर रहे हैं वो उनके लिए है। इसका विचार करके हमारा बर्ताव, हमारा जो कुछ योगदान जो समाज को देना है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर ही सौंपी हुई है। आप जिस तरह से इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे, सेवा के स्वरूप में इस पद को देखेंगे, तभी तो निश्चित तौर से समाज का और देश का भी निश्चित तौर से
कल्याण होगा। आज हजारों सैनिक हमारे सामने आर्मी के लोग हैं, लाखों लोग हमारी रक्षा वहां से कर रहे हैं। हम नौकरी मिले ना मिले, हम तो है इनके भरोसे हमारा जीवन ठीक तरह से आगे चलता है। देश का नागरिक होते हुए भी हमारा भी कोई तो फर्ज होता है, और वही फर्ज निभाने का जहाँ जहाँ हम हो वो फर्ज निभाने का मौका आप सबको मिला है। और मेरे ख्याल से हम सब मिलके ये फर्ज जो हमारे ऊपर है, ये देश का, समाज का, वो निभाने की निश्चित तौर से आप लोग कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा उन सभी विभागों की उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने रोजगार मेले को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया हुआ है। आपका समन्वित प्रयास अवसरों और दक्षता के नए तंत्र का निर्माण कर रहा है। समापन से पूर्व मैं एक विचार साझा करना चाहता हूं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पेशेवर आवश्यकताओं की बदलती वास्तविकताओं उसमें आप सभी को निरंतर अपने प्रशिक्षण, कौशल और क्षमताओं को अद्यतन करना आवश्यक है। यह न केवल आपके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपको उस आधुनिक दुनिया में सफल बनाएगा जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली होता जा रहा है। निरंतर सीखे, निरंतर बढ़े और उसी ऊर्जा के साथ देश की सेवा करे जैसे ऊर्जा से आपने आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। इन शब्दों के साथ फिर एक बार हम आप सबको बधाई देते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय।